we have to study the modern concept of acid and base. See the old concept or the basic thing which the old concept we cannot use it in chemistry proper basic. So there was a scientist called Arrhenius. He gave a concept about acid and base. According to him, according to Arrhenius, the concept substance which dissociate in water and give H plus ions. Those substances like HCl in water is going to give H plus and Cl minus. In short, it's giving H plus. Then we are going to call it acid. And the substance on dissociation in water like NaOH, they produce Na plus and OH minus. The substance which gives OH minus, we call them base. That was his concept. However, this concept has lots of limitations. Let us understand one by one the limitation of this concept. The limitation of this concept are as follows. First of all, what he said, the proton H plus is highly unstable. He has given us the definition of acid on the basis of H plus. But H plus itself is very highly unstable. Why it is unstable? Because H plus आपको मिलता कहाँ से? हाइड्रोजन में से. हाइड्रोजन has one proton and one electron. अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हो तो आपको H plus plus इलेक्ट्रॉन मिलता है. तो H plus is nothing, is only one proton. और खाली अगर वन प्रोटॉन आया तो उसकी साइज बहुत छोटी है. It is very unstable. It reacts very fast. That's why we cannot give definition only on the basis of H plus, which is unstable. Even H plus cannot exist independently. H plus जब पानी के साथ रिएक्ट, जैसे कि we know about this, H plus plus H2O, तो आपको H3O plus देता है. What does it give you? H3O plus. Even latest theory suggests it does not combine with only one molecule of water. It combines 4 molecules of water and it produces H9O4 plus. ऐसा आयन देता है, which is a group of molecules. So that is not stable. So H plus के बेस पे हम यहाँ पे बेसिक का कंसेप्ट समझा नहीं सकते. Another problem with it, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो H3O plus आयन देता है. Okay, certain substance ऐसे जिसके पास OH minus नहीं है, according to him OH minus is compulsory, तो ही वो बेस है. जैसे कि NH3 है, उसके पास OH minus है ही नहीं, but still it shows the property of base. We could not explain that. Though it doesn't have, NH3 doesn't have OH minus, but still it's behaving like base. Another compound BF3, उसके पास H plus नहीं है, still it acts as an acid. So, okay, he could not explain that. Those substances which should have H plus, we are going to call it acid. जिसके पास OH minus, we are going to call it base. लेकिन NH3 के पास OH minus नहीं है, BF3 के पास H plus नहीं है, and respectively they are behaving as base and acid. He could not explain that. Another important point, very important point, is that okay, this concept can be applied to aqueous solution only. मैं आपको समझाता हूँ. अगर आपके पास NH4Cl का सॉल्ट है, अगर okay, सॉलिड फॉर्म में, अगर आप उसको पानी के अंदर डालते हो, it will neither give you H plus nor it will give you OH minus. इन दोनों में से कोई भी आपको नहीं मिलने वाला. So on the basis of that, NH4Cl हो गया न्यूट्रल. NH4Cl क्या हो गया? न्यूट्रल. बट वही NH4Cl, the same NH4Cl, अगर आप अमोनिया के अंदर डिसोल्व करते हो, then it shows the property as an acid. Same substance, okay, once it behaves as neutral and second time it behaves as an acid by changing its media. जिसके अंदर आप डिसोल्व कर रहे हो, H2O के अंदर वो न्यूट्रल था, NH3 के अंदर वो क्या बन गया? एसिड. So he could not explain about NH3. He could explain only about H2O. That means the concept of Arrhenius is limited when you are using solvent only water. You cannot use any other solvent. So that was its limitation. That has been written over here. आगे भी मैं आपको बता रहा था कि भाई खाली H plus खाली प्रोटॉन है और उसकी साइज 10⁻⁻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 ⁻
सेकेंड थिंग H प्लस कंबाइन होकर H3O प्लस देता है एंड इवन अभी तो ऐसा लेटेस्ट बता रहे हैं कि वन एस्टिमेट इज दैट H प्लस कैन बी कंबाइंड विद 4 molecules of water H plus plus 4H2 and gives H9O4 plus 9. Hence this concept is not acceptable concept. So okay, they have to go for another definition. So there were two scientists called Bronsted and Loring. They come up with another theory. एंड उनका जो थियरी था वो थोड़ा अलग थियरी है. उन्होंने क्या किया, भाई OH माइनस काफी सारे बेस के अंदर नहीं है तो उसको हम हटा देते हैं, लेट्स रिमूव. एंड दे ओके डिसाइडेड दे मेड H प्लस को बेस लेके उन्होंने बेस, यहाँ पे बेस का मतलब बेसिक बेस वाला बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बेस मतलब ओके विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑन द बेसिस ऑफ द ओके H प्लस. उन्होंने दो डेफिनेशन दी. डेफिनेशन ऐसी थी, द सब्सटेंस ओके ड्यूरिंग अ रिएक्शन अगर H प्लस डोनेट करता है HCl और H2O में, अगर आप रिएक्शन करते हो तो HCl H प्लस डोनेट करेगा H2O को एंड वी गेट H3O प्लस प्लस Cl माइनस. द सब्सटेंस विच डोनेट्स H प्लस उसको हम बोलेंगे H प्लस डोनर को एसिड बोलेंगे, लुईस नहीं, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड. एंड जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे. मतलब H प्लस यहाँ पे HCl डोनेट कर रहा है तो ये हो गया एसिड और ये क्या हो गया, बेस. सेम वे अनदर रिएक्शन, अगर आप NH3 और H2O को रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे H2O NH3 को एक H प्लस देगा और आपको मिलेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस. H2O से H प्लस है. तो H2O is donor of H plus, that's why H2O is acid. And NH3 is acceptor of H plus, that's why NH3 is. Are you following this? सबका ओके. जरा ध्यान से देखना, मैं एक चीज जो आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ओके काफी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ. ओके हमारे पास जो ये रिएक्शन था उसका मैं आधा पार्ट किया. Consider these two. Now in H3O plus and Cl minus, अगर सपोज इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है सपोज, तो इन दोनों में से H प्लस कौन देगा, ऑब्वियस है H प्लस ये डोनेट करेगा Cl माइनस को. इन दैट केस ये क्या बन गया, एंड इसने H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया. अच्छा इन दोनों में क्या होगा, NH4 प्लस और OH माइनस. आई थिंक सो NH4 प्लस हैज अ कैपेसिटी डोनेट H plus, so that's why that has become acid and that has become base. Okay? मैं जो आपको बता रहा हूँ वो इस तरीके से बता रहा हूँ. okay? हमारे पास ये आधा रिएक्शन था. HCl में ये एसिड था, ये बेस था. NH3 में NH3 प्लस H2 में NH3 बेस है और ये एसिड है. बराबर है कि नहीं. अभी जरा ध्यान से देखिए पूरा रिएक्शन. ये एसिड H प्लस दे देने के बाद ये एसिड H प्लस दिया, उसके बाद वो बचा क्या, Cl माइनस. एम आई राइट. और जो ये H2O था उसने H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद वो बना क्या, H3O प्लस. आप जरा देखिए यहाँ पे ये जो एसिड था आफ्टर डोनेटिंग H प्लस इट इज कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस. नाउ इट इज एक्टिंग एज ए बेस. एसिड आफ्टर डोनेटिंग H प्लस बन जाता है क्या, बेस. और जो यहाँ पे बेस था आफ्टर एक्सेप्टिंग H प्लस इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एसिड. आर यू फॉलोइंग दिस? ओके सेम थिंग ओवर हियर. यहाँ पे ये बेस था, उसने जब H प्लस एक्सेप्ट किया ये वाला, इट इज कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस व्हिच इज नाउ व्हाट. एंड सेम वे यहाँ पे ये जो एसिड था उसने H प्लस डोनेट कर देने के बाद वो बना OH माइनस एंड OH माइनस एक्टिंग एज व्हाट, बेस. तो उसका कंक्लूजन ये निकल रहा है हमारे पास कि आपके पास
ओके, एसिड होता है वो H प्लस डोनेट करने के बाद वो बन जाता है बेस, एंड जो बेस होता है वो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद बन जाता है एसिड। ओके, और इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको हम एसिड 1 बोलेंगे, इसको बेस 1 बोलेंगे, इसको हम एसिड 2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बेस 2। सेम में ये बनेगा बेस 1 और ये बनेगा एसिड 1, ये बनेगा एसिड 2 और ये बनेगा बेस 2। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये एसिड में से जो ये बेस बना है, एक्चुअली इट वाज नॉट बेस बट एसिड में से बना है, इसीलिए इसका नाम, ओके, हम खाली बेस 2 नहीं लिखेंगे, कंजुगेट बेस 2। क्या लिखते हैं? बिकॉज H2O एंड OH माइनस दे आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। H2O में से आपको OH माइनस मिला, तो H2O एसिड है बट यहाँ पे उसका कंजुगेट बेस क्या, ओके, OH माइनस। आर यू फॉलोइंग? सेम वे, ओके, ये जो बेस था उसने H प्लस एक्सेप्ट किया, ओके, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एसिड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंजुगेट एसिड। कहने का मतलब क्या हो गया, बहुत ही सिंपल है। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास कोई बेस है और अगर आपको पूछा गया ये बेस का कंजुगेट एसिड क्या है, तो आपको H प्लस ऐड करना है बेस में से करेंगे, तो आपको मिलेगा NH4 प्लस, वो उसका कंजुगेट एसिड होगा। अगर आपको पूछा कोई भी सब्सटेंस का कंजुगेट एसिड क्या है, तो H प्लस ऐड करो। एंड अगर आपके पास एसिड है और पूछते हैं इसका कंजुगेट बेस क्या है, तो इसमें से H प्लस निकाल दो, माइनस करो, H प्लस निकाल दो, बचेगा क्या, Cl माइनस, तो वो क्या हो गया, बेस। आपको समझ में आ रहा है? ओके, आपको समझ में आ रहा है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना ये पॉइंट। आपको ऐसे पूछेंगे, गिव कंजुगेट एसिड एंड बेस ऑफ NH3। ठीक है, आपके पास ये NH3 था, उसका कंजुगेट एसिड लेना है। मैंने आपको बताया अगर कंजुगेट एसिड लेना है तो आप H प्लस ऐड करोगे, तो कंजुगेट एसिड क्या मिलेगा। अच्छा, अगर इसका कंजुगेट बेस लेना है तो आपको माइनस H प्लस करना पड़ता है, तो NH3 में से एक H प्लस चला गया तो बनेगा क्या, NH2 माइनस H प्लस गया, तो NH3 का कंजुगेट बेस NH2 माइनस, NH3 का कंजुगेट एसिड NH4 प्लस। H प्लस निकालते हो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आती है, याद रखना, पॉजिटिव चार्ज निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। आर यू गेटिंग दैट? यू आर कंफ्यूज्ड?